Hello all my dear students, how are you all guys? I hope that you all will be very fine and your studies will be at your best. And dear students, as you know, at present your chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation is running, and we have nearly completed 80 to 85% syllabus. Don't worry, in upcoming 2 or 3 videos we will complete this chapter. It was so complicated, so lengthy chapter, and that may be hectic for all of you also. And as you know, in previous videos we have completed all other terms except genetic disorders. So last topic आपका बचा हुआ है, that is genetic disorder, and when we will complete genetic disorder your chapter will be completed, because as you know in previous topic we have discussed about the mutation. So I will not waste a single minute here. Straightforward I am going to start the genetic disorders. All my dear students, I have already categorized the genetic disorders in various categories to be convenient for all of you, for we can say that clear cut concept within few minutes. So these are the genetic disorders. Genetic disorders are the disorders those present at gene, or we can write chromosome, or we can write DNA label. Okay beta? So genetic disorders are those disorders that takes place due to abnormal gene, due to change in the chromosome number, due to change in the morphology of chromosome, due to change in the DNA sequence, and it transferred from its parent to the offspring. Such diseases, those takes place due to improper sequence of DNA, due to change in the chromosome number, due to change in the gene. So all these, just as it is, passes from their parents to the offspring. अब आप कहेंगे सर HIV/AIDS जो प्लासेंटा को पार करके फीटस तक पहुंच जाता है, तो क्या वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है? नहीं बेटा, ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जो प्लासेंटा, जैसे हमने आपको सिफिलिस बताया था, ठीक है, ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में हो सकती हैं, और वो भी जब बेबी डेवलप कर रहा है तभी से हो सकती हैं, ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंस बर्थ और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बट हम उनको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे. जब कभी भी बात जेनेटिक डिसऑर्डर की आएगी, वी हैव टू कंसीडर क्रोमोसोम, जीन और डीएनए, यानी जीन लेवल पे, क्रोमोसोम लेवल पे या डीएनए लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह से जो डिजीजेज हो रही हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 categories. The first one is Mendelian disorder and the second one is chromosomal disorder. What is the basic difference between Mendelian disorder and chromosomal disorder? Actually Mendelian disorders follow the inheritance pattern of Mendel. यानी मेंडल ने जो अपने 3 लॉज बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसी तीनों लॉज पे मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, क्रॉस पे बेस इन सभी का इनहेरिटेंस होता है. इस वजह से इसको हम कहते हैं मेंडेलियन disorders. These are known as Mendelian disorders because they follow the pattern of inheritance of Mendel. Okay, so what is Mendelian disorder? These are the gene related human disorder. ये क्या होते हैं? जीन रिलेटेड, या हम कह सकते हैं अगर मंडल के अकॉर्डिंग कहते हैं तो फैक्टर रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ड्यू टू अल्ट्रेशन और म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन. ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, ये अल्ट्रेशन या म्यूटेशन जो कि एक सिंगल जीन का होता है, उसी की वजह से ये होते हैं. वो डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, वो हम यहाँ से देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव. लेट्स कंसीडर दीज 2 कैटेगरीज. ठीक है, डोमिनेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ से आपको कौन कौन से डिजीज मिलेंगे बेटा? हंटिंगटन्स कोरिया, दिस इज ए मेंडेलियन डोमिनेंट डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन इज मार्फन सिंड्रोम. नेक्स्ट वन इज मायोट्रोपिक डिस्ट्रोफी, विडोज पीक, रोलिंग ऑफ टंग, अल्जाइमर डिजीज. ओके, एंड आउट ऑफ दीज विडोज पीक and rolling of tongue are also the part of your practical examination of class 12th. So these two are very very important. But out of these, Huntington's chorea, widow's peak,
rolling of tongue and myotopic dystrophy. All these are important for your various kind of examinations. First यहाँ से recessive में देखेंगे. In recessive first one is phenylketonuria जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, फेनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज हमने आपको बताया था जो कि वो टायरोसिन में कन्वर्जन था, वो सारी चीज़ें वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एल्कैप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म, ऑल दीज 3 डिजीजेज आर ड्यू टू फेनाइल एनालिन. ठीक है, ये क्या है, फेनाइल एलानिन, इसकी वजह से ही ये तीनों डिजीज होती हैं. नेक्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया, आपको मैं बता चुका हूँ. थैलेसीमिया वी हैव टू एक्सप्लेन. सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर. दिस इज अ बेब चार्ट. इसके माध्यम से मैं केवल आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ. एक्सप्लेनेशन मैं 1 बाय 1 करूँगा. ठीक है, इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को जो फॉलो करते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जो फॉलो करते हैं, सॉरी वी कैन से दैट मेंडेलियन इनहेरिटेंस को जो फॉलो करते हैं या मेंडेलियन पैटर्न को जो फॉलो करते हैं, उसमें से 2 डिजीज हम और देखते हैं. 2 आर कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, एंड दीज 2 आर ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो वी विल डिस्कस ऑल दोज बिकॉज दोज आर व्हाट, सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है, बट वो क्या है, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं और वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है. लेटर ऑन हम आपको स्पेशल मैकेनिज्म जो होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाले, उसमें वो बताएंगे. उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता था क्योंकि वो मैकेनिज्म यूनिक थी. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर. लेट्स क्विकली डिस्कस द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर the disorders those takes place due to deletion, due to addition, insertion, translocation, inversion. All we have discussed, it means that due to change in the morphology or change in the number of chromosome. यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से ये होता है. ओके बेटा, तो मैंने लिखा भी है ड्यू टू एडिशन, डिलीशन, etc और क्रोमोसोम नंबर गॉट चेंज. आगे देखेंगे, ये ऑटोसोमल हो सकते हैं, सेक्स लिंक हो सकते हैं. आपको पता है कि आपकी बॉडी में बेटा 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं. एक जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, इनको आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हो, लास्ट पेयर, और बाकी जो 22 पेयर्स होती हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं. तो कुछ डिजीज़ हैं जो ऑटोसोम्स पे होती हैं, कुछ डिजीज़ हैं जो सेक्स लिंक्ड हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम पर होती हैं. ऑटोसोम की बात करेंगे तो डाउन सिंड्रोम है, यहाँ से एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, यहाँ पे बिल्लियों की जैसी आवाज़ आती है रोने पे. आउट ऑफ दीज डाउन सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड ऑल दीज 2 और वी कैन राइट 3, बोथ 3 आर द पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. केवल एक ही डाउन सिंड्रोम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, बाकी दोनों आपके कंपटीशन के पार्ट्स हैं. लाइकवाइज हियर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी. Klinefelter syndrome, Klinefelter syndrome is also a part of your NCERT. So these are the part of your board examination, and rest 2 super males and super females are part of your competitive examination. So all my dear students, this was all about the BAPE chart of various kind of genetic disorders those were present in human being. You can take the screenshot of these, that will surely help to make the notes. Now we will start today here chromosomal disorder. मैं बेटा आज आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताऊंगा, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, पूरी कोशिश है कवर करने की. और जो ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा. उसमें 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे क्योंकि डिसऑर्डर्स आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं. इसको मैं सिंगल वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ. सो लेट्स क्विकली डिस्कस टुडे अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके प्यारे बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, ऑटोसोमल. ऑटोसोमल वी विल डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज व्हाट, डाउन सिंड्रोम. डाउन syndrome, this is a autosomal disorder. It is commonly known as trisomy of 21st chromosome, trisomy of 21st chromosome, or we can write Mongolian idiocy, और सिंपली लिख सकते हैं इसको मंगोलिज्म.
सो इसको आप कॉमनली ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम कह सकते हैं, मंगोलियन इडियोसी कह सकते हैं, और या सीधा सीधा आप इसको क्या कहते हैं, मंगोलिज्म कह सकते हैं. ऑल दीज वर द कॉमन नेम्स ऑफ दीज. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल reported by Langdon Down in 1866. ठीक है, डेट थोड़ा आप लोग देख लेंगे, 1866. नेक्स्ट, दिस इज ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी. मैं आपको बता चुका हूं, एन्यूप्लॉइडी जिसमें आप क्रोमोसोम या तो ऐड हो रहा था एक या एक डिलीट हो रहा था. दिस इज ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा X chromosome on 21st pair of ऑटोसोम. यानी आप सभी को पता है कि 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम के. तो 21st पेयर जो होता है बेटा, जिसको मान के चलते हैं वो x था, इसमें क्या हो गया +1x हो गया, तो ये क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई. रिजल्टिंग इन 24 chromosomes in egg, और total 47 chromosomes in affected females. ठीक है बेटा, यानी ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ज़्यादातर कॉमन कहाँ होता है, फीमेल्स में होता है. ये मेल में भी मिल सकता है क्योंकि मेल में भी X क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, कैसे, अगर ये मेल में हुआ तो मेल में क्या कंडीशन होगी, 45 + XY, यानी ये दोनों मिलके कितने हो गए, 47. अगर यही चीज़ फीमेल्स में हुई बेटा तो 45 + XX टोटल 47. तो ये जो कंडीशन होती है किसमें, डाउन सिंड्रोम में. इसमें ज़्यादा बवाल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम में एक एडिशनल X क्रोमोसोम की कॉपी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जुड़ जाती है. इसमें होता क्या है, आपको सिंपल इतना मान के चलना है, ये ट्राइसोमी है. ट्राइसोमी मतलब क्या हुआ, आपके पास 21st पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम का था उसमें एक X क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है. वो मेल से आ रहा है या फीमेल से आ रहा है वो एक अलग बात है, बट वहाँ पे एक एडिशनल X क्रोमोसोम होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, ट्राइसोमी. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया गया. चलो बेटा, अब आगे दूसरा पॉइंट यहाँ से देखेंगे, सिम्टम्स क्या आते हैं डाउन सिंड्रोम में. सिम्टम्स फर्स्ट, ओके बेटा, तो यहाँ से सिम्टम्स देखेंगे. राउंडेड फेस, ओके, ब्रॉड forehead, as well as we can write always open mouth with protruding tongue. यानी इनके पास जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, चेहरा गोल है, बहुत बड़ा आगे वाला जो सर का पोर्शन है वो बड़ा होता है, हमेशा मुंह खुला रहता है और जीभ बाहर रहती है. तो ये तो एक सिम्टम्स है कॉमन से. और एक और देखते हैं, नेक्स्ट, फ्लैट नेक, स्मॉल फिंगर्स, फ्लैट
palm, ठीक है, as well as underdeveloped gonads, underdeveloped गोनैड्स। ये बेटा रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं बट इनके जो गोनैड्स होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। ये नहीं है कि ये पूरी तरह से क्या है, स्टेराइल है, नहीं, इनमें रिप्रोडक्शन होगा लेकिन जो इनके गोनैड्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो ये तो कुछ मेजर से सिम्टम्स हैं, एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पे एक नोट लगाएंगे आप, नोट बेटा जो कि विशेष है, इसको याद रखना है आपको। क्या है ये? ओनली वन affected out of 750, यानी 750 बच्चों में एक अफेक्टेड होता है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। ये क्या होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस with frequency increases with increasing age of mother, यानी मदर की जैसे जैसे बेटा एज इंक्रीज होती जाती है इस डिसऑर्डर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे नॉन डिसजंक्शंस जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल है आपका डाउन सिंड्रोम। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम। तो हमें केवल इतना पढ़ना था कि डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है, उतना ही याद रखना है। सिम्टम वगैरह कभी पूछे नहीं जाते हैं, पूछे जाएंगे तो आपको बताना है। सिर बड़ा हो जाएगा, गोल हो जाएगा चेहरा, जीभ हमेशा बाहर आएगी, मुंह हमेशा खुला रहेगा, लिप्स पतले हो जाएंगे और गोनैड्स अंडर डेवलप हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द अनदर। दूसरा है बेटा एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इन 1960, एंड दिस इज ड्यू to an additional chromosome on 18th pair of autosome, due to an additional, we can write here additional, due to an additional chromosome on 18th pair of autosome, यानी ऑटोसोम जो आपके हैं उसमें से जो आपकी 18वीं पेयर है उस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? चिल्ड्रंस और बेबी keep the fingers tightly clenched, यानी जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ अपनी मुट्ठियाँ बांधे होते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो बच्चे आते हैं, इस न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनकी मुट्ठी हमेशा बंधी क्यों रहती है? मुट्ठी बांध क्यों आते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, हम लोग प्राइमेट्स, और हमारे एंसेस्टर्स कौन है? हमारे एंसेस्टर्स ऐसे हैं जो ट्रीज़ वगैरह पे रहते थे। मंकी को मान लो उधर से एक से दूसरे ट्री पे जंप करता है ना, तो वो पकड़ने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करता है। तो उसी तरह से जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, वो भी सोचता है ना कि हमको किसी चीज़ को पकड़ के रखना है, हमको किसी चीज़ को अपने आप को बचाना है, तो वो भी मुट्ठी बांधे ही रहता है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो कैसे थे? क्लिंट जॉज वाले थे। सो बेबी कीप द फिंगर्स टाइटली क्लेंस्ड। यहाँ पे और क्या होता है? स्मॉल जॉज, बच्चे के पास जो जबड़ा होता है वो छोटा होता है। डी फॉर्म ईयर्स, यानी ईयर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते बेटा। डी फॉर्म ईयर्स
स्मॉल माउथ, नोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, छोटा सा जबड़ा रहेगा, कान प्रॉपरली डेवलप नहीं रहेंगे, छोटा सा मुंह रहेगा, छोटी सी नाक रहेगी, हमेशा मुट्ठी बंधी हुई रहेगी। अब ये सब है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? पेशेंट इज मेंटली रिटार्डेड and dies after 6th month of birth, 6 month of birth, यानी बच्चा जन्म लेने के 6 महीने बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये बेटा था दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। अब यहाँ से तीसरा देखते हैं। ओके बच्चों, तो फटाफट यहाँ से देख लेते हैं। अभी तक हमने आपको क्या बताया? डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी थी 21st पेयर में। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम बताया गया, जहाँ पे एडिशनल कॉपी थी 18th क्रोमोसोम पे। इसके बाद यहाँ से देखिए आप पटाउस सिंड्रोम। पटाउस सिंड्रोम कहाँ हो रहा है? 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे ट्राइसोमी है 13th पेयर पे। किन्होंने डिस्क्राइब किया था? साइंटिस्ट का नाम था पटाउ। कहाँ इन्होंने किया था? 1960 में। ये होता क्यों है? ड्यू टू, जैसे देखिए, ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 13, यानी जो क्रोमोसोम नंबर 13 होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ एवरेज स्पैन क्या होती है? 4 महीने की होती है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? छोटा सा हेड होगा और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये लिप का ऊपर का पोर्शन उनका कटा रहता है, ठीक है, और ऊपर का तालू उनका दिखता रहता है, तो उसी को हम कहते हैं, यहाँ से मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाऊंगा। और उनकी जो ये चिन होती है ये स्मॉल होती है। फिर हमने आपको बताया क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसको हम क्या कहते हैं? कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये मान के चलते हैं कोई क्रोमोसोम था, ये इसकी शॉर्ट आर्म थी, ठीक है, और ये कौन सा था? 5th क्रोमोसोम था। इसमें से ये पोर्शन डिलीट हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स होता है। कौन सा? क्राई लाइक मीविंग ऑफ कैट, यानी म्याऊं म्याऊं करके जो बिल्लियां होती हैं वो करती हैं, वैसे ये भी करते हैं, रोते हैं अगर तो। कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इनका जो फेस होता है वो मून लाइक होता है। मैंने बताया कि ये भी सर्वाइव नहीं करते हैं। इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन आती है नियरली अबाउट 4 मंथ्स की आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑटोसोमल chromosomal disorder. Now we will quickly discuss about the sex chromosomal disorders. Okay, all my dear students, so now we are going to discuss about the sex chromosomal disorders, in which we have to discuss about the various kind of disorders. Those are Turner syndrome, Klinefelter syndrome, super male, as well as we will discuss about the super females. So because these are two important points of your class 12th and these are the part of your NCERT. ये दोनों के दोनों NCERT में दिए गए हैं। पहला है टर्नर सिंड्रोम। ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या हुआ? एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया और क्या सिचुएशन हो गई? हमारे पास टोटल कितने थे? 46। कितने रह गए? 44 एक 45, यानी एक डिलीट हो गया। वो कौन सा वाला हो गया? वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है। यहाँ से देखिए ये क्या है? 1 आउट ऑफ 3000 में अफेक्टेड, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है इन्फेक्शंस की या अफेक्टेडनेस की या डिसऑर्डर की, दैट इज 1 आउट ऑफ 3000। व्हाट इज द सिम्टम्स? हियर फीमेल्स आर स्टेराइल, क्योंकि वहाँ से देखिए एक X क्रोमोसोम क्या हो गया? गायब हो गया है, ठीक है। फीमेल्स आर स्टेराइल विथ रूडिमेंट्री ओवरीज फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी जो फीमेल्स होती हैं बेटा उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ओवरीज उनकी रूडिमेंट्री होती हैं, यानी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं। उनके पास अनडेवलप यूट्रस होता है, ठीक है। यहाँ से देखें आप, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, यानी जो ब्रेस्ट है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। यूट्रस प्रॉपरली डेवलप नहीं है। उनकी नेक्ड कैसे हैं? वेब्ड हैं। और उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत पुअर होती है, यानी गर्दन पतली
ओवरीज, यूट्रस, ये सभी डेवलप नहीं, ब्रेस्ट भी डेवलप नहीं। तो इस वजह से जब कुछ भी फीमेल वाला कैरेक्टर नहीं होता तो वो स्टेराइल हो जाती है। इसी का जस्ट वाइस वर्सा होता है बेटा, कौन? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहां पे क्या होता है? ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। वहां से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया था, यहाँ पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। कैसे? यहाँ से देखिए, ये होता क्या है? फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल एक्स एस एग और अ नॉर्मल वाई, और वी कैन से दैट यहाँ पे जो वाई है उसके साथ वाला एक्स क्रोमोसोम भी अफेक्टेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए इंडिविजुअल के पास कितने हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम्स, यानी एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है किसकी? एक्स क्रोमोसोम की। यहाँ से देखिए 44 जो ये आपके ऑटोसोम्स हैं, और लास्ट में ये एक्स और ये वाई, और बीच में एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, जिस वजह से टोटल कितने हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम्स, यानी यहाँ पे 2x क्रोमोसोम आ जाता है। और 2x क्रोमोसोम अगर आ गया, y क्रोमोसोम भी है, इसका मतलब फीमेल वाला कैरेक्टर अपीयर हो जाता है मेल में। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो ये आप देख सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब डबल एक्स हो गया तो एक एडिशनल कैरेक्टर आ गया ना फीमेल का, तो ऐसे जो मेल होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, उनके जो टेस्टिस होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, मेंटल रिटार्डनेस होती है, और उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हो? गायनिकोमास्टिया। मैंने यहाँ से लिखा भी है। और उनकी वो आवाज़ भी कैसी हो जाती है? फीमेल की जैसी। आपने देखा कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनकी आवाज़ फीमेल की जैसी होती है, कुछ ऐसे मेल होते हैं जिनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उनके टेस्टिस प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, कुल मिला के वो फर्टाइल नहीं होते हैं। सो ऑल दीज वर द अबाउट द टर्नर एज वेल एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाउ वी विल क्विकली डिस्कस अबाउट द सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। यहाँ पे बेटा सुपर मेल और सुपर फीमेल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो सुपरमैन की तरह होती हैं, वहाँ पे एडिशनल कॉपी हो जाती है। अगर सुपर फीमेल है तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, और जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम बढ़ते चले जाएंगे वहाँ पे आपको पता है कि फीमेल्स के जो कैरेक्टर हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, यानी हाइट एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और वो हाईली डेवलप हो जाते हैं, ठीक। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर। इसी तरह से मेल के भी एबनॉर्मल हाइट हो जाती है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ आ जाती है, एग्रेसिवनेस आ जाता है, ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर फीमेल, ठीक है, इनको हम कहते हैं पॉली एक्स फीमेल्स, ओके। यहाँ पे क्या होता है? सच इंडिविजुअल्स हैव 47, यानी क्या हो गया? 44 प्लस एक्स 48, 44 प्लस एक्स 49 मीन्स दैट एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स के क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जाएगी वो सुपर फीमेल में कन्वर्ट होती जाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? ठीक है, यहां पे क्या होता है? एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी चूंकि एक्स क्रोमोसोम की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो चूंकि बेटा वो फीमेलनेस के जो कैरेक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करा देंगे। तो एबनॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है, मेंटल रिटार्डनेस एंड एबनॉर्मल हाइट, यानी फीमेल्स की जो हाइट होती है वो बहुत ही एबनॉर्मल यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। ये होता है 1 आउट ऑफ 1500, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 आउट ऑफ 1500। ध्यान देने वाली बात क्या है? एंड सिम्टम्स मोर सीवियर,
and symptoms more severe as increase in X क्रोमोसोम, यानी X क्रोमोसोम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, X क्रोमोसोम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बेटा, होगा क्या कि इनके अंदर जो इसकी सीवियरनेस है वो भी बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दे आर फर्टाइल, ये क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं। अब यहाँ से देखेंगे सुपर मेल में क्या होता है, पॉली वाई, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल्सो नोन एज जैकॉब्स सिंड्रोम और क्रिमिनल सिंड्रोम, इसको जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। एंड हियर व्हाट इज द सिचुएशन, 44 प्लस XYY, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, एग्रेसिवनेस, यानी ऐसे पर्सन बेटा बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, उनके पास क्या होती है, क्रिमिनल मेंटालिटी होती है, क्रिमिनल मेंटालिटी, और वी कैन राइट क्रूएल मेंटालिटी, ऐसे लोग बहुत क्रूएल होते हैं। और यहाँ से एक और देख सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, यानी टेस्टोस्टेरॉन का ओवर प्रोडक्शन, इस वजह से क्रिमिनल मेंटालिटी आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसमें से बेटा जो आपको बोर्ड के बच्चे जो हैं हमारे, जो बोर्ड एग्जाम के हैं, उनको केवल और केवल पढ़ना है क्या, डाउन syndrome for board, as well as you will also study about Klinefelter syndrome, डाउन सिंड्रोम, और सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, एक लास्ट में आपको और पढ़ लेना है, जो कि 3 ही है। पहला है डाउन सिंड्रोम, जो कि क्या होता है, ट्राइसोमी से 21st में। क्लाइनेफेल्टर में क्या हो जाता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। और एक आप देखेंगे टर्नर, यानी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर और टर्नर्स, यही 3 आपको पढ़ने हैं, बाकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दैट आफ्टर वाचिंग द वीडियो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, you can leave in your comment box or you can message me directly. So this was all about for today. In the next video we will discuss about the Mendelian disorders and pedigree analysis. So till then, bye bye, take care, have a nice day.